Hello everyone. Yesterday we started our chapter The Princess September, and in this chapter we came to know about the nine princesses whose names were after the names of month, and the king and queen. Uh, the king had a peculiar habit, which was that instead of receiving gifts on his birthdays, he used to give gifts to his daughters. And on such a birthday, he gifted some parrots to his old daughters with golden cages, and they all were very happy. They were started to teach them two or three sentences, pretty Polly, and one more sentence, God save the king, and they were very happy. But the Princess September, who was the ninth daughter of the king, lost his her parrot, and she was very sad due to that, and she was weeping throughout the day. And when she was weeping in the night, a little bird, singing bird, came to his palace and started singing. And this bird said to the princess that I want to stay with you. Can you give me the place of your parrot? And the princess was very happy after listening this bird's sweet song, and she said that you can stay with me. And next morning she uh, went to her sisters to show them this new singing bird, and to her father and mother also. They also praised this beautiful voice bird also. And due to that, all the sisters were feeling insulted themselves, because their parrots didn't have such a sweet voice. So they made a plan. What plan was made by them, we will read in our this lecture. The princesses were vexed at this. Vexed means distressed, worried. All the princesses, 8 princesses except the Princess September, were very worried at this, because their parrots were not getting any attraction by anyone, because they just spoke 2 sentences, and this little bird was singing very sweetly, and it was talking very sweetly. So they all were worried about it, and the parrots looked very glum indeed. और वास्तव में जो पैरट्स थे वो भी बड़े जो है दुखी दिखाई दिए, क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई थी. But Princess September went through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew around and around her singing like a nightingale. अब जो है इस पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश थी, क्योंकि उसको जो है एक नया पक्षी मिल गया था, और वो महल के हर कक्ष में जो है हर कमरे में घूम रही थी, एक लार्क की तरह जो है गाना गाती हुई गुनगुनाती हुई घूम रही थी, और ये छोटा सा पक्षी जो उसके चारों ओर नाइटिंगेल की तरह गाना गाता घूम रहा था. Things went means Princess September was very happy with this bird, but all the princesses except Princess September were very worried at this, because their parents were not getting any attention from anyone, and they felt insulted themselves. Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. कुछ दिनों के लिए चीज़ें ऐसे ही चलती रही. सब जो है उसके बर्ड की प्रशंसा करते रहे, प्रेज करते रहे. फिर 8 जो प्रिंसेसेस थी उन्होंने हेड्स पुट देयर हेड्स टुगेदर मीन्स उन्होंने जो है प्लानिंग की, एक साथ मिल करके जो है प्लानिंग की. दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड. और फिर वो जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास जाती हैं और उसके चारों ओर एक सर्कल बना करके बैठ जाती हैं, और उससे कहती हैं, मेरी बेचारी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट. हम तुम्हारे जो है सुंदर तोते की मृत्यु पर बड़े दुखी हैं. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव. और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरा रहा होगा, भयानक एक्सपीरियंस रहा होगा कि तुम्हारे पास हमारे जैसा एक पेट बर्ड नहीं है. सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर. और इसीलिए हम सब ने जो है अपनी जेब खर्च इकट्ठा किया है, जो हमें जेब खर्च के तौर पर पैसे मिलते हैं, हम सब ने उनको जमा किया है. एंड वी आर गोइंग टू बाय योर लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट. और हम जो है तुम्हारे लिए एक सुंदर सा प्यारा सा जो है हरा और पीले रंग का जो है तोता खरीदने जा रहे हैं.
Thank you for nothing, said September. I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. लेकिन इस बात पर जो है वो उनका धन्यवाद करती है, लेकिन उनको मना कर देती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक पेट बर्ड है जो कि बहुत चार्मिंग सॉन्ग्स गाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव सॉन्ग्स गाता है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है. And I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. And she says to her sisters that what I will do with the green and yellow parrot, because I like my bird very much, so I don't need any parrot. मैं इस आपके लाए हुए तोते का क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो अपना एक पेट बर्ड है और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. अब वो कहती है, अच्छा मेरी प्रिय बहन, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. क्योंकि तुम्हारे पक्षी के बारे में बोलना तो जो है बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि तुम्हारा पक्षी जो है अपनी मर्जी के अनुसार जो है हर कमरे में इधर उधर बाहर अंदर जो है घूमता रहता है. इट डजेंट हैव एनी मैनर. ये पक्षी जो है इसके पास कोई तरीका नहीं है, इसको नहीं पता कि कहाँ पर जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए. दे लुक्ड राउंड. अब वो जो है चारों ओर कमरे में देखती हैं और फिर अपनी भौहें आईब्रोज को जो है ऊपर की ओर उठाती हैं. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ? क्या तुम हमारे इस क्वेश्चन को जो आंसराइज कर पाओगे कि तुम्हारा पक्षी अब कहाँ है? तुम माइंड तो नहीं करोगी इस चीज़ को, दिल पे तो नहीं लोगी? दे सैड, वो बोलती हैं, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. Then Princess September replied to them that my bird has gone to pay a visit to his father, to meet his father-in-law. अब वो क्या कहती है कि मेरा जो पक्षी है वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया हुआ है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? आस्क्ड द प्रिंसेसेस. सभी जो राजकुमारी हैं उससे पूछती हैं कि तुम ये कैसे सोच रही हो कि वो वापस यहाँ पर आएगा. ही ऑलवेज जस्ट कम बैक, सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर कहती है कि वो हमेशा वापस आता है. इट मीन्स वो जो है आमतौर पर प्राय जो है विजिट्स के लिए जाता रहता है, लेकिन वो वापस लौट करके आ जाता है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you wouldn't run any risk like that. अगर तुम हमारी एक एडवाइस लोगी, सुझाव लोगी, तो तुम्हें जो है इसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा. आगे तुम्हारे लिए जो है कोई खतरा नहीं रहेगा. If he comes back and mind you, if he does not, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. अगर वो वापस आता है, और ध्यान रखना कि अगर वो आज वापस आ गया तो तुम बड़ी ही भाग्यशाली रहोगी, क्योंकि वो क्या कहना चाह रही थी कि वो पक्षी जो है तुम्हारे पास वापस लौट करके नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आ भी गया तो तुम्हारा बड़ा लक होगा इसमें. पॉप हिम इनटू द केज, और फिर उसको तुम कहाँ पर रख देना? इस पिंजरे में बंद कर देना. एंड कीप हिम देयर, और उसको वहीं पर रखना. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. और यही एक तरीका है कि तुम उसको यहाँ रखने में सक्सेसफुल हो सकती हो. तुम्हारा पेट बर्ड जो है तुम्हारे पास रह सकता है, अदरवाइज वो जो है कभी भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम. लेकिन मुझे तो उसका जो है कमरे में उड़ना बहुत पसंद है, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. और ये जो है कौन बोलता है? प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि मुझे मेरे पक्षी का जो है कमरे में उड़ना बहुत अच्छा लगता है. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनसली. उसकी जो सिस्टर्स हैं वो क्या कहती हैं? सुरक्षा पहले होती है. एंड ओमिनसली मीन्स थ्रेटनिंग, उसको डराते हुए कहती हैं कि जो है सुरक्षा पहले होती है. वो उसको जो है कोई अपशगुन होने के लिए डराती हैं कि जो है कुछ गलत जो होने वाला है, इसीलिए जो है तुम अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हारे जो पालतू पक्षी है उसको यहाँ पर रखने के लिए क्या करो? उसको पिंजरे में बंद कर देना. दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम.
वो खड़ी होती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं। शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, अपने सिर हिलाते हुए। और फिर जो है इसके बाद प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वेरी अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि जो है उनकी बातों का उसके ऊपर गहरा असर हुआ था और वो सोचना शुरू कर देती है कि ऐसा कैसे करूं। वो बड़ी जो है अनईजी फील करना शुरू कर देती है। It seemed now the second part starts. Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. अब यहाँ पर क्या है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो उस पक्षी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसके लिए कोई चांस नहीं लेना चाहती, उसे कोई मौका नहीं देना चाहती कि वो उसको छोड़ करके चला जाए, और इसीलिए जो है अपनी बहनों के एडवाइस पर थोड़ा ध्यान देती है। द बर्ड कांट कम ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। और जब उसने उस पक्षी को जो है कैद कर लिया, पिंजरे में डाल दिया, तो वो जो है अपने इस कांट ओवरकम, इस तनाव से बाहर नहीं आ पाया, जब क्योंकि उसने अपनी फ्रीडम को खो दिया था, उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई थी और इसीलिए वो हमेशा जो है दुख में रहता है वहाँ पे। द प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबाउट हर ऑन। और फिर लास्ट में क्या होता है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या डिसाइड करती है कि बर्ड की जो हैप्पीनेस है, उस पक्षी की खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा जो है महत्व इम्पोर्टेंस देती है और उसको आज़ाद कर देती है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगता है कि उसका छोटा पक्षी जो है कई लंबे समय से जो है बाहर गया हुआ है, दूर गया हुआ है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। फिर वो सोचना शुरू कर देती है कि बहुत सारे बाज वगैरह, स्नेयर्स वगैरह घूमते रहते हैं और क्या पता उनके द्वारा जो है उसको पकड़ लिया गया हो, किसी संकट में जो है वो फंस गया हो। Besides, he might forget her or he might take a fancy to somebody else. और साथ ही वो क्या सोचती है कि शायद वो पक्षी जो है उसको भूल गया होगा और किसी और के पास जो है चला गया होगा। तो इस तरह से जो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो बर्ड है वो काफ़ी लंबे टाइम से गया हुआ था बाहर और अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। तो वो सोचना शुरू कर देती है, क्या पता वो किसी खतरे में हो, किसी बाज, किसी स्नेयर ने जो उसको पकड़ लिया हो। और दूसरा वो क्या सोचती है, क्या पता जो है वो मेरे को भूल गया हो और किसी और के पास रहने के लिए चला गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, उसने जो है विश मांगी कि वो जो है वापस सेफली जो है सुरक्षित हो वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्विट ट्विट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सो द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। अचानक से जो है सेप्टेम्बर को क्या सुनाई देता है, बर्ड के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है अपने कान के जस्ट पीछे, और उसने देखा कि जो छोटा पक्षी है वो उसके कंधे पर आकर के बैठ गया है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो इतनी जो है चुपचाप अंदर आया कमरे में, इतनी अच्छे तरीके से पीसफुली जो है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज वो कहाँ पर बैठ जाता है। केम डाउन, अलाइटेड मीन्स केम डाउन सो सॉफ्टली ऑन हर शोल्डर दैट शी डिडंट हियर दिस, कि उसको जो है ये सब सुनाई नहीं दिया। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस, मैं तो बड़ी चिंतित थी कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है ऐसा। आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड, मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए बड़ी परेशान होगी। और ये बात कौन बोलता है, लिटिल बर्ड जो है अपनी राजकुमारी से कहता है कि मुझे पता था कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। द फैक्ट इज़ आई वर नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, सच बात तो ये है कि आज मैं वापस आने वाला नहीं था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी, मेरे फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे हैं, एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो मुझे वहाँ पर रखना चाहते थे, ठहराना चाहते थे। बट आई थॉट यू वुड बी एन एक्सेस, लेकिन मैंने सोचा कि आप मेरे लिए चिंतित होंगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, और इन सर्कमस्टांसिस में
इस तरह की सिचुएशंस में जो है ऐसा एक पॉइंट जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के सामने रखना उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि अब ये बात सुन करके जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि कभी वो जो है वहीं पर ठहर गया तो उसको वहीं पर रोक लिया गया तो उसका क्या होगा, उसके पास जो है वो वापस नहीं आएगा तो वो अकेली रह जाएगी। और ये सोच करके जो है वो अपनी बहनों की एडवाइस पर और ज़्यादा सोचना शुरू कर देती है। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, और इस तरह से जो है सेप्टेम्बर को अपना दिल जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कता हुआ नज़र आता है। एंड शी मेड हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और फिर वो अपना मन बना लेती है कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने जो है अपना हाथ आगे फैलाया और उससे पक्षी को पकड़ लिया। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the case. बर्ड जो है ज़्यादा उसके ऊपर शक नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो है सरप्राइज हो जाता है जब उसको वो केस के पास ले करके जाती है। पॉप्ड हिम इन, और उसको अंदर डाल देती है। एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही couldn't थिंक ऑफ नथिंग टू से, और कई क्षण के लिए, कुछ देर के लिए जो है पक्षी समझ ही नहीं सका कि वो उससे क्या कहें। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसको इतनी जल्दी में जो है पिंजरे में डाला कि उसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और वो उससे कुछ न कह सका। बट इन अ मोमेंट और टू, लेकिन कुछ क्षणों में, ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट्स द जॉक, और फिर वो जो है फुदक करके हाथी दांत के बने हुए एक पर्च पर जो है जा करके बैठ जाता है और उससे पूछता है ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जॉक सेड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कहती है, कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मम्माज किड्स आर प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट, लेकिन मम्मा की कुछ बिल्लियाँ जो हैं आज घूम रही हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस पिंजरे में सेफ रहोगे। एंड हेयर प्रॉलिंग अबाउट मीन्स शिकार करती हुई घूम रही हैं। आज मम्मा की जो बिल्लियाँ हैं वो शिकार करती हैं रात को, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस पिंजरे में बहुत सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। फिर इस बात पर जो है छोटा पक्षी क्या कहता है, अच्छा इसलिए, तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड उसको बोलता है, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। अब वो उससे क्या पूछता है, सुबह तो मुझे जो है इससे बाहर निकाल ही देंगे ना। ही एट अ वेरी लॉन्ग सपर, वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग, और उसने जो है अच्छा खाना खाया रात का और फिर गाना गाना शुरू कर देता है। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने सॉन्ग के बीच में ही वो जो है ठहर जाता है, रुक जाता है, बंद कर देता है गाना। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर विद मी ही सेड, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या बात हो गई आज। आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, मुझे नहीं लग रहा है कि आज मुझे गाना गाना चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा है गाना गाने का। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो सेप्टेम्बर इस पे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जो है सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप, और इसलिए जो उसने अपनी विंग्स के नीचे अपने सिर को डुबोया और फिर वो जो है कुछ ही मिनट्स में गहरी नींद में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सोने चली जाती है। बट व्हेन द डान ब्रोक, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वो किसके द्वारा जगाई जाती है, छोटे पक्षी की जो है आवाज़ों के द्वारा, क्योंकि वो जो है बहुत तेज़ जो है उसको बुला रहा था कि वो उसको बाहर निकाल दे आकर के। वेक अप ही सेड, उठ जाओ उठ जाओ। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोला। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मैं जो है जब ओस की बूंदें ग्राउंड पे गिरी हुई हैं तो मैं बाहर जो है एक अच्छी उड़ान लेकर के आना चाहता हूँ, घूम करके आना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर, और इस पर सेप्टेम्बर क्या कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो, यहाँ से बाहर नहीं निकलो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सेड द लिटिल बर्ड जो उससे बार बार कहता है। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट, उसने जो है कोशिश भी की, जो केज की बार्स थी
सलाखें थी उनसे बाहर निकलने की, खिसकने की, लेकिन वो नहीं कर सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, वो दरवाजे को जो है पीटना शुरू कर देता है। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन वो जो है उसको भी नहीं खोल सका। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, तभी जो है 8 राजकुमारियाँ उसके कमरे में आती हैं और उस पक्षी की तरफ देखती हैं। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और वो सेप्टेम्बर को कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है उनकी एडवाइस को मान करके। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, और वो उसको कहती है कि ये जल्दी ही जो है इस पिंजरे का आदी हो जाएगा। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और कुछ दिन में भूल जाएगा कि कभी वो आज़ाद भी हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, अब जब वो 8 राजकुमारियाँ वहाँ अपनी बहन से बात कर रही थी तब लिटिल बर्ड कुछ भी नहीं बोला। बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर गई वो फिर से चिल्लाना शुरू कर देता, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर, इतने मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, तुम मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और फिर मैं तुम्हें क्या दूंगी, शुगर का एक टुकड़ा दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. और फिर जो है लिटिल बर्ड क्या करता है, वो गाना नहीं गाता बल्कि एक कोने में जो है खड़ा हो जाता है और खुले आसमान की तरफ, नीले आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। और उसके बाद उसने एक सिंगल जो है नोट भी नहीं गुनगुनाया, एक छोटा सा भी गाना जो है कभी नहीं गाया। और इस पर क्या होता है, व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, इस पर जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कहती है कि तुम्हें जो है सल्किंग मीन्स इन अ सलन मूड, तुम इतना जो है हठी मूड, इतना जो है अपना मूड क्यों ख़राब किए हुए हो, इतने परेशान क्यों हो। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी परेशानियों को भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड, मैं कैसे गा सकता हूँ, बर्ड ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, मैं जो है बाहर पेड़ों को देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ, और जो ग्रीन राइस हरे चावल हैं उनके खेतों को देखना चाहता हूँ, उनको उगते हुए जो है बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड, वो कहती कि मैं तुम्हें रोज़ बाहर घुमाने ले जाया करूँगी। इफ़ इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, ये सेम थिंग नहीं है, जैसे मैं आज़ादी से घूमता हूँ तुम मुझे वैसे नहीं ले जा पाओगी। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of the cage. और फिर वो क्या कहता है कि जब आप जो है पिंजरे की सलाखों से राइस के फील्ड्स को, लेक को और विलो ट्रीज़ को देखते हो तो बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, जैसे वो आज़ाद परिंदे को नज़र आते हैं वैसे जो है एक कैद हुए परिंदे को नज़र नहीं आ सकते। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग, पक्षी जो है कोई गाना नहीं गाता था और ना ही वो कुछ खाता था। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्सियस एट दिस, इस पर जो है राजकुमारी थोड़ी चिंतित थी। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपनी बहनों से पूछती कि इसके बारे में तुमने क्या सोचा कि ना तो वो कुछ गा रहा है और ना ही कुछ खा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फ्रॉम दिस सैड, और वो उसको क्या कहती हैं कि तुम्हें अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए, तुम्हें जो है उसको आज़ाद नहीं करना चाहिए। बट इफ़ ही वुडंट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड, अब जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, अब वो क्या कहती हैं कि ये जो है उसके लिए हितकर नहीं होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसको भी तो सोचना चाहिए कि तुम उसी की भलाई के बारे में सोच रही हो। इफ़ ही इज़ नॉट ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, अगर वो जिद करता है, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद करता है और मर जाता है,
तो ये उसके लिए सही रहेगा क्योंकि उसने तुम्हारी बात को नहीं माना। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सेप्टेम्बर ने ये नहीं देखा कि ये जो है उसके लिए कितना अच्छा होगा ऐसा करना। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। लेकिन वो सारी जो है उससे बड़ी थी और वो 8 थी, इसलिए जो है उनके सामने वो कुछ भी नहीं बोली। Perhaps he will have to got used to this case by tomorrow, she said. अब वो कहती है कि शायद जो है कल तक वो इस पिंजरे का आदी हो जाए, उसको ज़्यादा परेशानी ना हो। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो बड़ी जो उत्साहित होकर के पिंजरे वाले पक्षी को गुड मॉर्निंग विश करती है। शी गोट नो आंसर, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो एकदम से बेड से उछलती है और पिंजरे की तरफ भागती है। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, और फिर वो जो है बहुत तेज़ रोना शुरू कर देती है। फॉर देयर इज़ द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर लिटिल बर्ड पड़ा हुआ था पिंजरे में। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। और जो है पिंजरे की तलहटी में वो अपनी साइड में जो है आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और वो दरवाज़ा खोलती है पिंजरे का और अपने हाथ अंदर डालती है उसको बाहर निकालने के लिए, उठाने के लिए। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट द लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, और उसको थोड़ी राहत की सांस मिलती है जब उसने देखा कि जो है नन्हे पक्षी की हार्ट बीट अभी भी चल रही है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। और वो क्या बोलती है, छोटे पक्षी जल्दी से उठ जाओ, जाग जाओ। सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो। आज के लिए इतना ही है। लेकिन अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने देखा कि जो है 8 राजकुमारियाँ जो थी वो अपनी बहन के इतने अच्छे पक्षी के लिए बड़ी उससे जलना शुरू कर देती हैं, और वो एक प्लानिंग बनाती हैं कि वो किस तरह से जो इस पक्षी को अपने रास्ते से हटाएं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा था और उनकी सब बुराई कर रहे थे, और राजा और रानी भी जो है उस पक्षी की प्रेज़ करते थे। इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग की और वो अपनी बहन के पास जाती हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास, और उसको कहती कि हम तुम्हारे लिए एक नया तोता खरीदेंगे। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर के मना करने के बाद वो उसको एडवाइस करती हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने पक्षी को पिंजरे में बंद कर लोगी तो वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाएगा, और तुम्हारा जो है रिस्क इसके लिए लेना ठीक नहीं रहेगा। अब इस बात पर जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोचना शुरू कर देती है, और जब उसका पक्षी वापस लौट करके आता है तो उसको पिंजरे में बंद कर देती है। पक्षी जो उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है कि वो उसको बाहर निकाल दे, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है उसको बाहर नहीं निकालती है। और उसकी जो बहनें हैं वो भी उसको एडवाइस करती हैं कि थोड़े दिन में वो आदत पड़ जाएगी उसको इस पिंजरे की, इसलिए उसको बाहर ना निकालो। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने देखा कि वो जो है कई दिन से, जब से उसने उसको पिंजरे में बंद किया था, ना ही वो खाना खा रहा था और ना ही कुछ गा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। अब वो अपनी बहनों से इसके बारे में डिस्कस करती है, तो उसकी बहनें जो है कहती है कि अगर वो मर जाएगा तो वो अपनी करनी का फल भुगतेगा, क्योंकि जो है उसकी वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रही हो, तो उसको जो है तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, और अगर वो मर जाता है तो तुम्हारा पीछा छूटेगा उससे। लेकिन वो उसको जो है अपनी बहनों की ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो उनका विरोध भी नहीं कर पाई, और वो अपने कमरे में जब जा कर के सो जाती है, अगली सुबह जब वो उठ के अपने पक्षी को विश करती है तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, और वो बड़ी चिंतित होकर के उसके पास जा कर के देखती है तो क्या होता है, पड़ा हुआ मिलता है, और वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल करके उसको बाहर निकाल लेती है। So it was all about this story up to now, and we will continue our story tomorrow. Thank you.